Next question. If the value of G, which is acceleration due to gravity, at Earth's surface is 10 meter per second square, its value in meter per second square at the center of Earth, which is assumed to be a sphere of radius r meter and uniform mass density is 0. There are two solutions. Solution number one is GD, मतलब acceleration due to gravity at depth is G 1 minus D by R, but depth is equal to R बोला है ना, क्योंकि कहाँ बोला है सेंटर ऑफ अर्थ. सेंटर ऑफ अर्थ मतलब यू आर राइट इनसाइड एट द सेंटर. सेंटर ऑफ अर्थ मतलब यू आर हियर, मतलब डेप्थ इज इक्वल टू R. So if depth is equal to R, what you will get is GD equal to 0. Q 0 because GD equal to G 1 minus R by R, that is equal to 0. क्योंकि R by R is 1, 1 minus 1 is 0. ये method number 1 है, but this is not what is expected for this question. क्यों? क्योंकि यहाँ पे the moment they mention density, you have to write in terms of density. तो अगर आपको याद होगा, which is actually method number 2 is correct method. G equal to Gm by R square. So G equal to G by R square volume into density. तो अब ऐसा है कि this is equal to G by R square 4 by 3 pi R cube rho. कैंसल और कैंसल. डेंसिटी कांस्टेंट बोला है, यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब कांस्टेंट है, करेक्ट. तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. सेंटर पे R ही 0 हो जाएगा. सेंटर पे दिस R इज 0, तो एट सेंटर R इज इक्वल टू 0, देयरफॉर G इज इक्वल टू 0. तो ये भी एक अप्रोच है. दिस इज ऑल्सो वन मेथड ऑफ सॉल्विंग. तो यू कैन सॉल्व इट बाय टू डिफरेंट मेथड्स. Question. The gravitational potential energy of a body of mass m at Earth surface is minus mgre. मतलब u initial basically is minus mgre. Its gravitational potential energy at height re, मतलब final, आपको पता है फाइनल एनर्जी, यू शुड रिमेंबर इट इज माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर. स्मॉल आर इज आर प्लस एच, राइट, फ्रॉम द अर्थ सरफेस विल बी. तो व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग यू. सिंपल. बट हाइट कितना दिया है? आर ई. तो दिस इज इक्वल टू यू फाइनल इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस आर ई, दैट इज टू ई, क्योंकि एच इक्वल टू आर ई है, तो आर ई प्लस आर ई 2 आर ई आएगा. करेक्ट. हो गया क्वेश्चन खत्म. क्यों? वाई? बिकॉज यू नो दिस इज इक्वल टू माइनस जी बाय, ऑफकोर्स आपको ये पता होना चाहिए, जी एम बाई आर. याद है कि हाँ, जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर. तो जी एम बाय आर इज जी आर. तो जी एम बाय आर, बट you have this. इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? That is why what we will do is first of all इसको कर लेंगे solve. इसके लिख देंगे आर ई. तो जी आर ई, एक आर ई यहाँ ले लिया, जी एम बाय आर ई, सब्स्टिट्यूट. तो यू फाइनल इज व्हाट इज यू फाइनल? माइनस ये हाफ जी एम बाय आर ई इज जी आर ई. GRE और स्मॉल m जैसा था वैसा है. आ गया? हो गया. ऑप्शन नंबर डी खत्म. वैसे वेल बाय द वे, बिफोर यू राइट इट डाउन, इसका आंसर बिना सॉल्व किए भी आता है. कैसे? नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल विल बी नेगेटिव. नेगेटिव होगा, सही है. नेगेटिव 2 ही ऑप्शन है. ऊपर से when you are increasing the height,
पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। जब पहले ही mgre था तो अब mgre से कम होगा और नेगेटिव होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन, two bodies of masses m1 and m2 are initially at rest at infinite distance apart. Then they are then allowed to move towards each other under mutual gravitational attraction. Their relative velocity of approach at a separation distance r between them. तो ऐसा है, you have a body जिसका मास m1 है, you have a body जिसका मास m2 है. Both are at infinite distance. So imagine this is infinite distance. Always remember, when you have infinite distance, kinetic energy as well as potential energy are zero. और kinetic तो zero है ही क्योंकि बोला ही है रेस्ट पे है. बोला है क्या? Initially at rest. तो total energy initial is zero. क्योंकि total energy initial की जब बात करते हो तो it is potential energy initial plus kinetic energy initial. Initial potential energy is anyways zero, or initial kinetic energy is also zero because objects are at rest. So total initial energy is zero. Now they are allowed to move towards each other. Allowed to move towards each other, मतलब basically they will start moving. When they start moving, they have kinetic energy. और ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा रिमेंबर, you have to apply law of conservation of energy always. तो you are allowing these two bodies to come closer now. तो पहले infinite distance पे थे and now you are allowing them to move, right? तो दोनों both are moving, और जब distance इन दोनों में r होगा तब relative velocity of approach कितना, ये पूछा है. So you are being asked relative velocity of approach when the distance between the two bodies is r, not at infinity but at r. So this is what you need to remember. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो याद रखो, दो बॉडीज है मतलब दोनों का मास भी है और दोनों का वेलोसिटी भी है, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी भी है. तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी हाफ पहले का एनर्जी प्लस हाफ दूसरे का एनर्जी, मतलब हाफ पहले का एनर्जी मतलब हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर. सेपरेशन इज r. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोर्स यू नो इज माइनस g m1 m2 by small r. तो फाइनल टोटल एनर्जी इन दिस केस, तो फाइनल टोटल एनर्जी कितना आएगा? दोनों का एडिशन आएगा. तो टोटल एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. दिस इज हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस g m1 m2 by r. This is what you have. Correct? अब according to law of conservation of energy, according to law of conservation of energy, total energy initial equal to total energy final, और initial तो था zero. This is equal to final half m1v1 square plus half m2v2 square minus g m1 m2 by r. Good. ठीक है. Then what you can do in the next step is, जीरो हटाओ, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, माइनस दिख गया यहाँ से. दिस इज व्हाट यू कैन डू. ऐसा आएगा. अब यू आर स्टक एट दिस पॉइंट. इसके बाद क्या करेंगे? फिर हमको क्या फाइंड करना था? रिलेटिव वेलोसिटी. मैंने बताया था रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज v1 plus v2, एंड इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो v1 minus v2 या फिर v2 minus v1 डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटीज.
बट दे आर मूविंग अपोजिट बिकॉज दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। तो क्या आएगा V1 प्लस V2। ना हमको V1 पता है ना हमको V2 पता है, तो V1 प्लस V2 कैसे आएगा? तो V1 प्लस V2 आ नहीं सकता। लेकिन इफ यू रिमेंबर, टोटल एनर्जी के साथ साथ और एक चीज हमेशा कॉन्जर्व होती है, लीनियर मोमेंटम। बट एज यू नो, टोटल लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कॉन्जर्व। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम तो कितना है? 0। फाइनल इज m1v1 माइनस, क्योंकि एक पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव में आ रहा है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो m1v1 इक्वल टू m2v2। अब अप्रोच बहुत सिंपल रखो। अगर आपको v1 फाइंड करना है तो इस इक्वेशन में से v2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट? तो यू हैव समथिंग एंड यू कैन यूज दैट। एक काम कर सकते हो आप। व्हाट यू कैन डू हियर इज, क्या करेंगे? थिंक। हमने क्या किया? हमने एक टर्म को m1 से और दूसरे टर्म को m2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, राइट? नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं करना है तो मत करो, डजंट मैटर। फिर थोड़ा सा सॉल्यूशन का तरीका अलग आएगा, लिटिल बिट स्टेप्स विल बी डिफरेंट, राइट? अब सब्स्टिट्यूट तो करके देखते हैं। m2v2 स्क्वायर है, m2v2 का स्क्वायर है ना? हाँ, तो m2v2 के स्क्वायर के भाई क्या डालोगे? m1v1 स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, from equation number 1 and 2, left hand side is g m1 m2 by r and right hand side पे आपके पास है half m1 square v1 square by of course m1 here and plus half m1 square v1 square by m2। अब जो कॉमन निकलता है निकाल लेते हैं कॉमन। g m1 m2 by r, half common, m1 square common, v1 square common, you have 1 upon m1 plus 1 upon m2, then g m1 m2 by r equal to half m1 square v1 square m1 plus m2 upon m1 into m2, correct? cancel and cancel, good। then अब यहां पे m1 बचा, कैंसल एंड कैंसल, हो गया यहां तक। शिफ्ट 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 सिर्फ v1 स्क्वायर को रखो वहां पे, जस्ट कीप v1 स्क्वायर देयर, v1 स्क्वायर देयर, बाकी सब इधर। 2 गया, g m2 स्क्वायर कहां से आएगा? हाँ, ये m2 आने के बाद स्क्वायर होगा, यस। एंड दिस इज m1 प्लस m2, ये क्या आ गया आपके पास? v1 स्क्वायर। एक बार आंसर, हाँ वी आर ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि देखो ये पावर में हाफ हाफ दिख रहा है, तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो हाफ आ जाएगा। तो अब v1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g अपॉन m1 प्लस m2, इसको बाहर रख दो। तो जब v1 था तो वहां m2 था, जब v2 होगा तो वहां पे m1 होगा। ये ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, बिकॉज अदरवाइज फिर ये नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ने वाले हैं। दिस इज ऑल अगेन यू हैव टू डू, 5-6 स्टेप बढ़ जाएंगे। तो अब वैसा करना नहीं। सिमिलरली you will have v2 equal to under root of 2g m1 plus m2 m1। relative velocity v relative is v1 plus v2। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको, क्या बताया? both are moving in the opposite direction। तो ये आ गया आपका v1 जिसमें m2 था, और प्लस v2 जिसमें m1 है। क्या कॉमन निकलेगा? निकाल लो कॉमन। वेरी गुड। अंडर रूट ऑफ 2g m1 प्लस m2, दिस इज अगेन m1 प्लस m2, है ना? पहले टर्म में m2 बचा, दूसरे में m1 बचा, तो m1 प्लस m2, सही है। अब स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाओगे तो क्या करके लेके जाएंगे? स्क्वायर करके ले जाएंगे। तो फाइनली
अंडर रूट ऑफ 2g m1 प्लस m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, एक और एक कैंसल, तो 2g m1 प्लस m2 रेज टू हाफ ऐसा मिलना चाहिए, है क्या? ऑलमोस्ट है, सिर्फ r कहीं तो हमसे छूट गया। r कहाँ छोड़ दिया हमने? यहाँ पे ये r था, ये r था, तो यहाँ पे भी ये r था, राइट? कहाँ पे r था? कहाँ पे? डिनोमिनेटर में r था, तो ये r छूट गया, तो ये r यहाँ पे आएगा। तो ठीक है, इसको छोड़ो मत, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। तो इसको r अंदर अंदर अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर r। तो इफ यू फॉरगेट टू राइट r, देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ ट्रबल। r, यहाँ पे भी r, तो यहाँ पे भी r, तो यहाँ भी आएगा r, और यहाँ भी आएगा r। तो 2g बाई r m1 प्लस m2 का रूट अभी है क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो वॉज वेरी सिंपल एंड वेरी स्मॉल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, given the mass of moon is 1 by 81 that of earth and corresponding radius is 1/4 of earth, escape velocity on earth surface is 11.2, the value of the same on the moon is, simple है, escape velocity ve is under root of 2gm by r, escape velocity ve is under root of 2gm by r, g तो कांस्टेंट होता है, 2 भी कांस्टेंट होता है, मतलब escape velocity ve is directly proportional to root of mass and inversely proportional to root of radius। आपको फाइंड करना है ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून टू दैट ऑफ अर्थ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मून, पहले लिखा ना, तो मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून, अरे मून पहले मून ना, तो मून, फिर अर्थ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। बट गिवन में आपको बोला है कि मास ऑफ मून इज मास ऑफ अर्थ बाय 81, हमको चाहिए mm by me, mm by m is 1 by 81, तो 1 by 81 मतलब बेसिकली 1 by 9, और rm कितना है? rm re by 4, मतलब rm by re is 1 by 4, करेक्ट? तो re by rm is 4, तो 4, तो ये आ गया 2 by 9, करेक्ट? अब एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज 2 by 9 टाइम्स ऑफ अर्थ, 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 ये 11 पॉइंट समथिंग समथिंग 11.2, राइट? तो 11.2 by 9 अप्रोक्सीमेट, ऑलवेज अप्रोक्सीमेट, देखो देखो ज्यादा सोचना नहीं इधर, 11.2 by 10, नहीं 11.2 by 10, 1.12, 1.12 into 2, 2.2, 2.2, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेट किया तो 2.5 आएगा आंसर, तो दिस इज 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। Next question, the velocity with which a projectile must be fired so that it escapes Earth's gravitational force does not depend on, अभी तो देखा हमने, VE is under root of 2gm by r, depends on mass of Earth, yes. Mass of projectile, no, it does not depend on mass of projectile. Radius of projectile's orbit, yes. Projectile's orbit, gravitational constant, yes. ये थोड़ा सा something is wrong. Radius of projectile's orbit, this is something not in the correct way. So anyways, ठीक है, it does not depend on mass of projectile. Okay, next question, the escape velocity from the Earth is 11 kilometer per second
the escape velocity from a planet having twice the radius and same mean density. मतलब आपको escape velocity को in terms of density लाना पड़ेगा. अब इतनी बार हुआ है कि आपको अभी ये बाय डिफॉल्ट याद रह जाना चाहिए कि ये क्या आएगा, 2gr 4/3 pi r cube डेंसिटी. कैंसल एंड नहीं, क्यूब है नीचे आर, बी केयरफुल. और मैंने बताया भी था कि क्रिटिकल वेलोसिटी हो या एस्केप हो, उसका प्रोपोर्शनलिटी सेम आता है. 2g कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और रो भी कांस्टेंट. सेम मीन डेंसिटी मतलब रो भी कांस्टेंट है. करेक्ट है. तो एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब बाय r, मतलब r स्क्वायर, मतलब प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली r. सिंपल. अगर रेडियस डबल हुआ तो फिर खत्म. तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लैनेट अपॉन फ्रॉम अर्थ इज रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ये है 2. तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लैनेट इज 2 टाइम्स ऑफ फ्रॉम अर्थ, मतलब 2 into 11 मतलब 22 किलोमीटर पर सेकेंड. नंबर ए. Next question. The mass and diameter of a planet are twice that of Earth. Mass भी double, diameter मतलब radius भी double. Of a planet are twice. मतलब समझ लो, mass of planet upon mass of Earth is 2. Radius of planet upon radius of Earth is 2. Diameter double मतलब radius double. The period of oscillation of a pendulum on this planet will be. दिया इंफॉर्मेशन आपको, प्लैनेट का है, पूछा है पेंडुलम, रिलेशन है. टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू, याद रखो चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें हमने ये फॉर्मूला विदाउट हेल्प ऑफ फिजिक्स, मतलब जस्ट बाय डायमेंशनल एनालिसिस, हमने ये के बोला था यहाँ पे, के रूट ऑफ एल बाय जी. अब चाहे अर्थ हो चाहे वो प्लैनेट हो, लेंथ तो चेंज नहीं होगा पेंडुलम का. पेंडुलम का जो लेंथ है वो वही रहने वाला है. तो लेंथ जो था पेंडुलम का, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. व्हाट विल चेंज इज जी. तो इसका मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी, राइट. बट एज यू नो जी इटसेल्फ इज gm by r स्क्वायर, मतलब g इज प्रोपोर्शनल टू m by r स्क्वायर. So t, which is proportional to root of g, but root of g is proportional to m by r square, right? ये r का रूट से बाहर आके ऊपर जाएगा, तो t is proportional to r by root m. I prefer it doing this way, क्योंकि कुछ बुक्स में क्या है कि g फाइंड कर लेंगे प्लैनेट का, वो भी चलेगा. फिर बोलेंगे t planet upon t earth is root of g earth upon G planet. Fine, but when you have information about mass and radius, so why to find out G first? Direct कर सकते हो. TP is not time passed, time period on that planet upon TE, time period of the pendulum on Earth. ये आ गया RP by RE. Under root of mass is inversely proportional. ME by MP. What is RP by RE? 2. And what is this? 1 by 2. So 1 by root 2. So 2 by root 2 is root 2. So it is root 2 times of Earth. है ना? root 2 times आना चाहिए ना? Should be root 2. Should be root 2. कोई बात, don't worry. Don't worry. We will check it out. क्या फर्क पड़ता है? Let's check it out. G proportional to m by r square. m by r square, r बाहर निकला ऊपर गया, ठीक है. TP by TE is RP by RE. Fine, that is okay because directly proportional था, सही है. And inversely proportional था, this is also fine. Good, this is fine. RP by RE twice दिया है क्या? Mass and diameter of planet are twice of Earth. ठीक है, twice. तो twice. तो RP by RE is 2. ME by MP, ME by MP is 1 by 2, तो 1 by root 2, तो 2 by root 2 is root 2. सही है, this is good. तो maybe
wait, 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 wait. A seconds pendulum. This is what we missed. If it is a seconds pendulum is a pendulum whose time period is 2 seconds. This is what we missed. ये आप वापस सीखोगे ऑसिलेशन 12th में. Don't worry. तो we are right. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स. तो टीपी इज यहाँ पे आ गया टी. व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 सेकेंड. 2√2. ऑप्शन नंबर बी. यस, दिस इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड्स पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स. कैसा? हाफ जाने के लिए 1 सेकेंड और हाफ आने के लिए 1 सेकेंड. तो 2 सेकेंड्स. Next question. An asteroid M of mass M is approaching Earth initially at a distance of 10 RE with speed v1. It hits the Earth with speed vf. Initial speed vi बोला होगा, वो v final होगा. ठीक है. RE and ME are radius, mass and radius of Earth. R is radius of Earth and M is mass of Earth. Then which one of the following is correct? Which one of the following is correct? Asteroid of mass M is approaching Earth. वो हम लोग रोज का न्यूज में सुनते हैं, कुछ आता तो है नहीं, है ना. डायनासोर्स के लिए आए थे, हमारे में नहीं आते. तो एनीवेज ठीक है. So you have an asteroid which is initially at a distance of 10 RE. 10 RE. अब सिर्फ इतना चेक करना पड़ेगा आपको और पता होना चाहिए. डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ डायरेक्टली बोला है ना, तो सीधा सीधा ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है. तो इनिशियल इज 10 RE. Then it hits the Earth. It hits the Earth. And when it hits the Earth, of course, you should know the distance is just RE. So final distance is RE. R final is equal to RE. This is what you have. So which one of this is correct? How to solve? Look, V square दिखा ना और GM by R दिखा. V square आता है kinetic energy में, GM by R आता है potential energy में. मतलब conservation of total energy. That's it. So you are just supposed to apply conservation of total energy. So total energy initial equal to total energy final. Total energy initial is kinetic energy initial plus potential energy initial equal to kinetic energy final plus potential energy final. Total energy initial is half mv initial square plus potential energy initial is minus g mass of Earth, mass of that asteroid upon r. R is 10 RE. This is equal to final is half m v final square minus g capital M small m upon RE. अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे v final मतलब v final को एक साइड रखो, बाकी सबको शिफ्ट कर देते हैं. तो हाफ m v final square इसको रख दिया, बाकी को यहाँ लाओ. हाफ m v initial square माइनस g कैपिटल M स्मॉल m by 10 RE. माइनस की जगह पे आ जाएगा प्लस. ठीक है. अब हाफ m v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू हाफ m. एक काम करो, m को निकाल लो कॉमन यहां से, क्योंकि कैंसिल करना है. v इनिशियल स्क्वायर माइनस g कैपिटल M by RE कॉमन 10 माइनस 1 है ना. 1 by 10 माइनस 1 बराबर माइनस. वेट ठीक है. आई अंडरस्टैंड वेयर यू कैन गो रॉन्ग. तो लेट मी पहले ही बता देता हूं, जहां गलती के थोड़े भी चांसेस दिखे ना, वहां पे बी केयरफुल एंड राइट दोस टर्म्स सेपरेटली. गलती करना नहीं है. 1 minus 1 by 10. What is this? 9 GM by R. तो ये कितना आ गया?
9 GM/RE, तो ये आ जाएगा 9 GM/10RE, है ना। 1/10 was 9/10 आएगा ऐसा। देन कैंसल कैंसल, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इफ यू मल्टीप्लाई 2, v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2/2 इज 1, ये भी 2/2 इज 1, v इनिशियल स्क्वायर माइनस 2/10, 9/5 g कैपिटल M अपॉन R, ऐसा होना चाहिए। अरे इन लोगों ने तो इतना भी नहीं किया है, हमारा मेहनत वेस्ट कर दिया सब। हमने इतना मेहनत किया और इन्होंने वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, सिर्फ 2 नहीं है, यस। तो एक काम करो, इतना मेहनत वेस्ट नहीं करना अभी अपना। हाफ m v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू हाफ m v इनिशियल स्क्वायर, सिर्फ इसको सॉल्व करो। क्या कॉमन निकालोगे? पहले ऑप्शन देख लो, सब प्लस प्लस प्लस, तो प्लस जी एम एम बाय आर ए निकाल लो कॉमन। -1/10 को बाद में लिखता हूं और इसको पहले लिखता हूं। अब 2 से मल्टीप्लाई, when you multiply by 2 you have just, यहां से गया, यहां से भी गया, और m कॉमन निकाल लेंगे तो m भी कॉमन निकाल लेंगे, तो m गया और यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा 2, तो ये m और ये m हो गया कैंसल। तो v फाइनल स्क्वायर इज v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2gm/re 1/10। ऑप्शन नंबर डी ना, डी, यस। तो -1, ये कैपिटल M आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी। इसलिए बोला डी लिखोगे तो -1, तो ऑप्शन नंबर सी। So that's it for today.